Assalamu alaikum. Continuing with a lecture series on general characteristics of transition metals. So we will now discuss one more property of transition metals, that is catalytic property of transition metals. If you say there are so many reactions जहाँ पे catalysts या तो ट्रांजिशन मेटल्स खुद होते हैं या तो उनके कंपाउंड्स. Transition metals as well as their compounds have the tendency to behave as catalysts. This is a unique property again with the transition metals. अब कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है that makes transition metals and their compounds to behave as catalysts, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली कैटालिस्ट जो आपने पढ़ा होगा. कैटालिस्ट इज एनी कंपाउंड दैट increases the rate of reaction, that increases the velocity of reaction. So catalyst क्या करेगा? It will increase the speed or rate of reaction. ठीक, ये अपने काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा. कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे विथ लेस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो मुझे वहां तो नहीं जाना होगा, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स कैटलिस्ट्स क्यों होते हैं? What are the reasons responsible for their catalytic activity? ठीक है, so there are two reasons responsible for their catalytic activity. So point number one, transition metals and their compounds have the tendency to behave as catalysts. क्यों कैटलिस्ट्स बिहेव करते हैं? इसको दो हेडिंग्स और दो रीजंस रिस्पॉन्सिबल है. फर्स्ट रीजन, टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. Variable oxidation states. Transition metals have the tendency to show variable oxidation states. वो already discuss हो चुका है oxidation states. अब variable oxidation state होने की वजह से catalytic property कैसे आ जाती है? ठीक है, transition metals because of their variable oxidation states combine with the reactants to form the intermediates of less activation energy. As a result, they decrease the activation energy and hence catalyze the reactions. Again, I repeat the statement. Because of their tendency to show variable oxidation states, ये reactants के साथ combine होके intermediates of low energy बनाते हैं, जिसकी वजह से activation energy decrease होगी, drop होगी and hence catalyze the reactions. ठीक है, अब इसकी हम example कुछ इस तरीके से देंगे. One of the known process in organic chemistry is contact process. Contact process में सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन to sulfur trioxide, this oxidation is catalyzed by V2O5. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर दे, we'll make it as 2 times and we'll make it as 2 times. 2 sulfur dioxide plus oxygen in presence of vanadium pentoxide, reversible reaction है, giving sulfur trioxide as a product. ठीक है, इसमें वेनेडियम की टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से SO2 को
क्विकली हम SO3 में कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैसे? वेनेडियम पेंटॉक्साइड itself reacts with the reactants to form intermediates of low energy pathway that gets converted into products. Look at the reaction mechanism. जो ये रिएक्शन होती है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड पहले V2O5 के साथ कंबाइन होता है and it gives SO3, ठीक है। और इस प्रोसेस में V2O5 रिड्यूस होके बनता है V2O4। क्लियर? सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद V2O5 टू फॉर्म SO3 और इस प्रोसेस में V2O5 रिड्यूस होके बनता है V2O4, ठीक। और दूसरे स्टेप में क्या होता है? Then V2O4 that's produced in that step combines with oxygen, second reactant, and it again forms V2O5, ठीक। अब इस रिएक्शन को बैलेंस तो ऑलरेडी हमने कर दिया। लुक एट दिस पाथवे। अगर नॉर्मली SO2 ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करेगा तो उस प्रोसेस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए तो रिएक्शन स्लो होगी। लेकिन SO2 डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये V2O5 के साथ रिएक्ट करके इससे एक ऑक्सीजन लेके SO3 में कन्वर्ट होता है। देन V2O4 देन रिएक्ट्स विद अनदर ऑक्सीजन, दैट्स अनदर रिएक्टेंट टू फॉर्म V2O5। इस प्रोसेस में देख लीजिए वेनेडियम के साथ क्या होता है। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +5 और वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें +4। पहले केस में +5, दूसरे केस में +4। अब यहां देख लीजिए फिर से +4 है और फिर से +5 है। सो वेनेडियम की टेंडेंसी टू शो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 to +4 अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगेन +4 to +5 फिर से वेरी कर रहा है। अगर वेनेडियम में ये टेंडेंसी नहीं होती टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये इस रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करता, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ this tendency to show variable oxidation state, vanadium pentoxide is able to oxidize this reaction to catalyze this reaction. That is the catalytic property of V2O5. अब जब आप इन दो रिएक्शंस को एड अप कर लोगे, V2O4 will cancel out. You will get sulfur dioxide plus oxygen. V2O5 will cancel out. Sulfur dioxide plus oxygen giving sulfur trioxide. This is the first property. As a result of it, transition metals and their compounds have the tendency to show catalytic properties. ये पहला तरीका, ठीक है। Now second way, दूसरा रीजन क्या है? Second reason, as a result of which transition metals and their compounds have the tendency to behave as catalysts. This second reason. Transition metals especially, they have the tendency to provide surface for the adsorption of reactants, adsorption of gaseous reactants on their surface. बहुत सारी रिएक्शंस ऐसे होती है। तो ट्रांजिशन मेटल्स प्रोवाइड सरफेस for the adsorption of gaseous reactants। जो ही gaseous reactants ट्रांजिशन मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं उसकी वजह से उनमें जो बॉन्ड्स है दैट गेट वीकेंड। जब बॉन्ड्स वीकन हो जाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप होगी। जब एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप होगी तो रिएक्शन कैटालाइज होगी, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल, ये मान लीजिए ट्रांजिशन मेटल, अगर कोई रिएक्शन है A2 + B2 गिव्स AB, ट्रांजिशन मेटल के सरफेस पे AB एडजॉर्ब होता है, B भी एडजॉर्ब होता है, ये रिएक्टेंट्स एडजॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो जो ही ये एडजॉर्ब होते हैं उसकी वजह से इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं, सिंस दे नीड टू बी ब्रोकन इन केमिकल रिएक्शन, ये बॉन्ड्स वीक बन जाते हैं तो इनको तोड़ना आसान होगा। जब इनको तोड़ना आसान होगा इस वजह से रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी वो ड्रॉप होगी। जब रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप होगी तो रिएक्शन कैटालाइज होगा। सो सेकंड रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी इज टेंडेंसी to adsorb, tendency to absorb the gaseous reactants
gaseous reactants on their surface, thereby decreasing activation energy, and hence catalyze reactions. ये दूसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है आफ्टर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो पहला रीजन रिस्पॉन्सिबल है टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड सेकंड रीजन रिस्पॉन्सिबल है टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब गैसेस रिएक्टेंट्स ऑन देयर सरफेस, ड्यू टू विच उनके बीच में बॉन्ड जो है वो वीकन बनेंगे, उनको तोड़ना आसान होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप होगी, रिएक्शन कैटालाइज होगा। ठीक है, टू सम अप दिस कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स अराइज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट रीजन इज टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड सेकंड रीजन इज tendency to absorb gaseous reactants on their surface. This is the second reason. ठीक है, इसको खत्म करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को सम अप करने के लिए we'll take some reactions जहां पे ट्रांजिशन मेटल्स बिहेव करते हैं एज कैटलिस्ट। हम we will write name of the reaction, we will write the catalyst। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ऐसे आ चुके हैं, आपको बताना है कि इस रिएक्शन में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है। कुछ कॉमन प्रोसेसेस है, नेम्ड प्रोसेसेस है, तो जहां पे ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स बिहेव करते हैं एज कैटालिस्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे प्रोसेस का, और उसके बाद यहां से हम उसमें देखेंगे उसमें कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है। ठीक, तो सबसे पहला नेम्ड प्रोसेस हैबर्स प्रोसेस में एज यू नो द कैटालिस्ट यूज्ड इज आयरन, और उसमें मोलिब्डेनम यूज होता है प्रमोटर इंक्रीजेस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। आयरन इज मेन कैटलिस्ट, finely divided iron, and molybdenum is used as a promoter. Second, contact process। अभी आपने contact process देखा, उसमें कैटलिस्ट यूज होता है V2O5 डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड। थर्ड, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये तो सभी को पता होगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जो मेटल्स यूज होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, निकल यूज होता है, प्लैटिनम यूज होता है, प्लेडियम यूज होता है, एड्सॉर्प्शन टेंडेंसी। नंबर 4, डीकन्स प्रोसेस इज द सिंथेसिस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम HCl। इसमें जो कैटालिस्ट यूज होता है दैट्स क्यूपरिक क्लोराइड, again transition metal compound. Fifth, Ziegler-Natta catalyst। ये पॉलीमराइजेशन में होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स जैसे पॉलीथीन है एंड सो ऑन है। Ziegler-Natta catalyst पॉलीमराइजेशन में यूज होता है। इसमें जो कैटालिस्ट यूज होता है दैट्स trialkyl aluminium in presence of titanium chloride TiCl4। This is the catalyst used। ठीक है, तो ये कुछ मेन कैटालिस्ट्स है जो यूज करते हैं हम इन डिफरेंट प्रोसेसेस, एंड ऑल दीज कैटालिस्ट्स बिलोंग टू ट्रांजिशन मेटल्स। या तो ट्रांजिशन मेटल्स खुद है या तो उनके कंपाउंड्स है। एक और कैटालिस्ट मैं यूज करना चाहता हूं, 6, ओसवाल्स प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओसवाल्स प्रोसेस में अमोनिया की ऑक्सीडेशन करने के लिए वी यूज प्लैटिनम एज ए कैटालिस्ट। प्लैटिनम इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। ठीक है, तो ये अक्सर ऑब्जेक्टिव आ चुका है, या तो 2-3 प्रोसेसेस दी जाएगी या तो कैटालिस्ट दिए जाएंगे, उनको आपस में मैच करना होगा कि कौन से प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स।
चलिए, कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ट्रांजिशन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स ऑब्वियसली जहां पे मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं एंड दैट्स नॉन आयनाइजेबल पार्ट, और उस पार्ट को, जो नॉन आयनाइजेबल पार्ट को, उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, दैट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, सो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। Transition metals have strong tendency to form complexes. What is the reason behind that? So पहला पॉइंट हम लिखेंगे, transition metals have strong tendency to form complexes. Because of, what is the reason behind that? ठीक है, पहला रीजन है स्मॉल साइज, रिलेटिवली स्मॉल साइज इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के कंपैरिजन में इनका साइज ऑब्वियसली छोटा है, तो छोटा साइज होने की वजह से इनमें टेंडेंसी होगी टू पोलराइज लिगेंड्स। इस वजह से ये टेंडेंसी दिखाते हैं टू शो complexes. Number second, high effective nuclear charge in comparison to S block, इनका effective nuclear charge भी ज़्यादा है, again that's responsible for polarizing power of transition metal cations. And third, most important, that is availability of vacant d orbitals. ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन मेटल्स हैव अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d orbitals. द रीजन क्या है? मेटल in coordination compound behaves as an acceptor and ligand behaves as donor. ligand to metal coordinate bond बनेगा, ये donor है या Lewis base है, और ये acceptor है या Lewis acid है। तो एक्सेप्टर बिहेव करने के लिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। दैट इज द मार्केट डिफरेंस ट्रांजिशन मेटल्स कि क्यों ये ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। रीजन इज अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, और इन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, लो लाइंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपका पूरा एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे है, जो इसके बाद वाला चैप्टर आप कंटिन्यूअसली पढ़ भी रहे हो। ठीक है, तो वो वाला चैप्टर वहां पे तो न्यूमरस एग्जाम्पल्स आएंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ नेम्ड कॉम्प्लेक्सेस लेता हूं, जैसे हीमोग्लोबिन में जो मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है आयरन। ठीक है, इसी तरीके से विटामिन B12 में जो ट्रांजिशन मेटल है दैट्स कोबाल्ट। ठीक है, सिमिलरली एंटी कैंसर ड्रग है सिस्प्लैटिन, उसमें जो ट्रांजिशन मेटल है दैट इज प्लैटिनम। 3 नेम इट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और उनमें जो मेटल्स है हीमोग्लोबिन में आयरन, विटामिन B12 में कोबाल्ट, सिस्प्लैटिन में प्लैटिन। ठीक है, तो मुझे एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे है। टू सम अप दिस, ट्रांजिशन मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस।
क्यों? रीजन, छोटा साइज, नंबर सेकंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये दो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर देयर स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर। ये पोलराइजिंग पावर स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, जिसकी वजह से इनमें टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। एग्जांपल्स आपके सामने है। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी, टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन मेटल्स दिखाते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, टेंडेंसी टू फॉर्म interstitial compounds। ठीक है। Now, what are interstitial compounds and why transition metals form interstitial compounds? ठीक है। When transition metals are heated in presence of non-metals having small size, ठीक है। If transition metals is heated in presence of non-metals having small size और जिनकी रिएक्टिविटी कम है, ट्रांजिशन मेटल्स आर हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, इसको हीट करते हैं। दीज नॉन मेटालिक एलिमेंट्स एंटर इनटू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, और जो कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं interstitial compounds. If transition metal is heated in presence of non-metals having small size, then these non-metallic elements enter into the crystal structure, lattice structure of transition metals. The compounds so formed are called as interstitial compounds. ठीक है। इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? फर्स्ट, these interstitial compounds are non-stoichiometric. First point, interstitial compounds are non-stoichiometric. ये non-stoichiometric होते हैं जहां पे ratio between the two atoms does not correspond to the whole number ratio। जैसे टाइटेनियम हाइड्रोजन 1.7, ठीक है। तो यहां पे जो रेशो है, दिस रेशो इज नॉट ए होल नंबर रेशो, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस कंपाउंड एज नॉन स्टाइशियोमेट्रिक कंपाउंड। पॉइंट नंबर 2, density of these interstitial compounds is greater than transition metals। जिस ट्रांजिशन मेटल का इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनेगा उसकी डेंसिटी इंटरस्टिशियल कंपाउंड के कंपैरिजन में ज्यादा है। जैसे टाइटेनियम और हाइड्रोजन के बीच में इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना, ठीक है, इस कंपाउंड की डेंसिटी टाइटेनियम से ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब नॉन मेटेलिक एलिमेंट इंटरस्टिशियल पोजीशंस पे जाएगा, obvious reason है कि density will increase। as a result of that we can say कि density is greater than the transition metals। point number 3, these compounds are inert। these compounds are chemically inert। केमिकली इनर्ट होने का मतलब है कि ये कंपाउंड्स रिएक्ट नहीं करते हैं। Once these compounds are formed, they are chemically inert. That means they do not react. That's why we write the term inert. And fourth, metallic conductivity is retained। जो मेटल की अपनी कंडक्टिविटी है, that is retained। उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने से। नेक्स्ट पॉइंट, metallic conductivity is retained। metallic conductivity is retained। इनमें जो कंडक्टिविटी है that is retained।
These are the characteristics of interstitial compounds. Transition metals को जब आप heat करोगे in presence of small non-metallic elements, these non-metallic elements enter into the interstitial side. The compounds formed are called as interstitial compounds. In interstitial compounds की कुछ properties है. पहला, they are non-stoichiometric. Ratio does not belong to whole number ratio, does not correspond to whole number ratio. Second, density is greater than transition metals. इनकी density transition metals से ज़्यादा है. Number third, these compounds are chemically inert. They don't react. That's why they are chemically inert. And fourth, metallic conductivity is retained. जो metal की conductivity है वो retain होती है. And the final and last property is tendency to form alloys. Tendency to form alloys. Tendency to form alloys. ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिशन मेटल्स की. एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज आर होमोजीनस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स with the addition of some non-metal. Homogeneous mixtures of metals. Homogeneous mixtures of metals with addition of non-metal. कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट भी इसमें ऐड किया जाता है. दैट्स एलॉय. एलॉयज बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको पता है स्टील इज एन एलॉय, ब्रास इज एन एलॉय, ब्रोंज इज एन एलॉय, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय. बहुत सारे एलॉयज हमारे पास है. मसला है एलॉयज बनते कैसे हैं. एलॉयज बनाने के लिए जब आप एलॉयज बनाते हो, कंडीशन ये है कि एक मेटल एटम दूसरे मेटल एटम को रिप्लेस करना चाहे इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में. वन मेटल एटम शुड रिप्लेस अनदर मेटल एटम इन इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ठीक है. उसके लिए कंडीशन क्या है कि दो मेटल्स का साइज कंपैरेटिवली लगभग एक जैसा होना चाहिए, उसमें उतनी ज्यादा फर्क नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सो इट इज रिटन दैट अगर 10 to 15% डिफरेंस होनी चाहिए, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए. अगर डिफरेंस 10 to 15% के बीच में होगा, ठीक है, तो उस केस में एक मेटल एटम दूसरे मेटल एटम को इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आसानी से रिप्लेस करेगा. दैट्स व्हाई वी विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज. ठीक. अगर आप ट्रांजिशन सीरीज में साइज वेरिएशन देखते हो, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ये कुछ साइज वेरिएशन यहां से यहां तक जो साइज है वो लगभग सेम रहता है. इस वजह से ये मेटल एटम्स एक दूसरे के एटम्स को क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड हेंस दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉयज. तो एलॉय बनने का जो सबसे बड़ा रीजन है कि विद इन अ ट्रांजिशन सीरीज साइज नियरली रिमेन सेम. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ट्रांजिशन मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉयज. ठीक है. सो एलॉय फॉर्मेशन का रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड एलॉय formation is that transition metals in a particular या given series, in a particular or given series have nearly similar size. ठीक है. यहां से यहां तक सिमिलर साइज है. एज अ रिजल्ट वो एक दूसरे के एटम्स को क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, और उसकी वजह से दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉयज. ठीक है. कुछ एलॉयज की एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, जैसे स्टील है, जैसे ब्रास है, जैसे ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, etc.
बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। दिस वॉज द टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉयज। एलॉय है क्या? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद एडिशन ऑफ सम नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज। एलॉयज तभी बनेंगे जब दो मेटल्स या तीन मेटल्स का साइज आपस में ज्यादा डिफर नहीं होता है, 10 to 15% की डिफरेंस होनी चाहिए। तो ट्रांजिशन मेटल्स में अगर आप देखते हो, आफ्टर द हाफ ऑफ द सीरीज साइज नियरली रिमेन सेम, इस वजह से एक दूसरे के एटम्स को आसानी से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रिप्लेस करते हैं। दैट गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज, ठीक है। सो विद दिस फॉर्मेशन ऑफ एलॉय वी हैव कंप्लीटेड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टू मेन कंपाउंड्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।